Yes, very good evening to everyone. Let me check if I'm audible with someone. Santosh, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good evening. I can hear you. Yes, yes, thank you. Hmm. I was about to schedule a new webinar and cancel this one. Still, now everything is fine. कोई क्वेरी है, कुछ कहना है किसी को? पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में कोई क्वेरी है या कोई भी ट्रेड सेटअप में कुछ भी क्वेरी है? बिगिनर्स क्वेरीज कोई, फ्रेशर्स की? ठीक है, रोमिल कहिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है. Sir, today you sent us some trades earlier in the day of trades with double snake. So can we go through a couple of them? One example of upper band and RC100 so that we are clear in terms of how to kind of look at it and what should be the journey, because I had We'll have two. a webinar for that. Maybe Okay, sir. tomorrow evening or Saturday, Sunday. Okay, sir. It is nothing trading with multiple snake, complete round sell, and stop in is to buy occurs and approaches RC 23.6%. So upper band is acting as a fourth breakout point. And Yes, sir. such trades we have found every script from 2018 for daily time frame, from 1995 for weekly and monthly time frame. First, to build up the temperament, we'll trade not intraday trading, but we find the trade from daily time frame. Daily. Yes, sir. And slowly, when your temperament allows, permits, we can shift to weekly also. By tomorrow evening, weekly time frame also will be ready with back testing and post closing trade setup pages. Okay, sir. If लेना है तो ले लेते हैं, and कुछ भी, there is nothing new is there. Yes, sir. Just ek bar, if you don't mind, sir. Let's just kind of look at it, because, sir, I saw a lot of these where they were going closer to PCCB or to RC100 and then coming back to WDP. And I'm assuming Yes, if WDP level trades on the lower side, then it will give you another 5%. So effectively, this Yes. becomes a 8 to 10% trade. Yes, yes, yes. In daily only, I was looking at. I was not. Yeah, daily only we should find the trade, because there is frequencies also there. Now daily we are having we have created so far 4 trade setup. Climbing by Wow. 261.8 traded means you know what it is, and it is a buy only, right? When correction occurs nearer to PCS or WDP of the occurrence period, which you know. Yes, sir. So let us take one trade setup from each one, but we'll organize a special webinar for this once weekly time frame is also available, maybe tomorrow evening and this Saturday, Sunday for sure. Okay, sir. Timing to 61.8% traded, 156 scripts. And in this, it is from 2018 also. But if you want to know latest occurrence, we can do sorting here. And 23rd March, Alembic Limited has traded 261.8. Now let us go to record sheet summary. Alembic Limited. And 23rd March. Now I'll open the alert column also. So on 23rd March, climbing by 261.8% is traded, right?
Yes, sir. 107.45 के ऊपर बाजार गया. So here the PCS, PCCB, the beauty of this post-closing trade set of pages is highest of high BDP, PCCB, and if any other stop loss is to sell, alert is there. So what is the highest price? 116.45. 45. Yes, sir. So prices to rise further when 116.45 trades on higher side. Yes, sir. And here actual PCB is not there. Occurrence period, what is the lowest price? 101.25 low, WDP WDP. or PCS? So you're taking the lowest तीनों of में this. So low. 90. Yes, sir. So that is mentioned here 19 and 40. So far we are doing this manually and Yes, sir. finding out what is the highest price and what is the lowest price of occurrence period out of high BDP, PCCB or any stop and use to buy sell alert like RMSL higher, no situation, etc. So by looking at this itself, we know that Alembic has traded climbing by 261.8 traded on higher side. This is a very good buy, but not immediate buy. It will come nearer to 19 and 40. Yes, Then sir. we'll buy. And here it has come nearer to 99.40. Now there Yes, is sir. two type of trades here. First one, I will only share. I will not train or explain, or I will not push, or I will not insist also. I will not encourage, because there no discipline of consistency matters a lot. What is the highest price? 116.45. So Yes, sir. correction sale is expected in 19 and 40. So we can, though it is in buying, we can sell with the stop loss of 116.45. Yes, sir. Next level TVH. Projecting 19 and 40, 116.45. Next level is 119.65. This would be Yes, your sir. stop loss. Sell Yes, sir. and project 19 and 40 and buy there. बट ये मैं सिखा नहीं सकता हूँ. क्यों नहीं सिखा सकता हूँ? For two reasons. One is it is a trending trade to buy. उसमें सेलिंग कैसे सिखाऊं? और Agree. हम सेलिंग करते हैं तो we should be prepared to see that it may trade 116.45 also on higher side. तो सेलिंग की पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करनी है और फ्रेश बाइंग भी करना है. और समझ लो कि फ्रेश सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, then it will continue to rise like anything. And here the person who is selling will be trapped. Yes. तो कंसिस्टेंटली 10 ट्रेड ऐसा करना का तैयारी हो, स्टॉप लॉस डाल के करने की तैयारी हो तो कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे पास नॉन ट्रेडिंग ट्रेड्स है रोमी, जो हमने निकाल दिए क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि स्टॉप लॉस नहीं रखते थे. और स्टॉप लॉस नहीं रखते थे तो क्या होता था, अदर साइड जो अपॉर्चुनिटी है बाइंग की वो भी मिस होती थी एंड रॉन्ग साइड में बैठ जाते थे. तो वी नो क्लाइंबिंग बाय टू ऑल, और ये ऐसा किसी को करना हो तो यू विल हैव टू गो थ्रू एलेबिक लिमिटेड का बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट भी है कि जब जब क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड किया हाउ इट इज बिहेव्ड, आप खुद ही देखो. एंड देन इफ यू वांट टू सेल, सेल आल्सो, बट आई विल से बाय हियर एट 19 and 40. Yes, understood. सो ये हम कर ही रहे हैं, कुछ नया नहीं. लाइक पावर ग्रिड 19 मार्च को हुआ था. Occurrence is on 19th March. 19th March, climbing by 261.8 is traded on higher side, right? 231.90 trade कर लिया है. So it is filtered here. Now what is the highest? 238.60. 238.60. What is the lowest? 218.5. Yes, sir. WDP, PCS, and stop and used to buy support. So 238.60 or 218.5 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया. Now Yes, this sir. says prices to rise further when 238.60 trades on higher side. And any decline in price above 218.5 is a correction sell. Yes, sir.
And if 218.5 is traded on lower side, then only trend will reverse. Yes. Correct, no? और यहाँ Yes, पे sir. close price दिया है आज. So immediately we can know 101 is above 19.40. तो मिल रहा है. 221 is nearer to 218. तो correction still हो गया इसका. And we have to just go to the record sheet summary and देखना है. 218.5 के नीचे तो नहीं गया ना अब तक. But today it has gone. 218.5 is traded on lower side. Sir. This is now trend reversal sell. So isn't this also very rewarding when there's a trend reversal, sir? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना रोमिल, आपने अभी अभी Okay. सीखा है. नहीं वैसे It is पूछ रहा हूँ rewarding, सर. भाई. Yes, sir. Okay. Every price, Romil, we can understand. Every movement of the market, we can understand. How much we can practice and how much we can implement, how much we can execute, that also matters a lot. Sir, today I faced the Definitely, same this is- situation. I faced the same situation, and This is- therefore I'm telling you. Yeah. This is a pattern failure, Yes. and pattern failure is more rewarding than the pattern itself. हालांकि यहाँ पे वहां तक आया, but from there we have to wait that it trades with one fresh support in RC along with BDP. Then it gives confirmation कि हाँ, it has taken support at 218.5 and it wants to trade higher. And it then first journey is 238.60. Then whenever 238.60 trades on higher side, another 5%. But this says very clearly कि अब 238.60 is the strong resistance. तो कितने टाइम तक उसका वेट करना पड़ेगा कि 238 आएगा तो बेचेंगे. दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स. पावर ग्रिड किसी के हाथ में 5,000, 10,000, 25,000 शेयर पड़ा है, उसको मालूम पड़ गया कि ट्रेंड रिवर्सल है. Now any rise in price, no, he will look for selling opportunity, and that rise in price will come up to PCR 225 or even up to 238. If anybody wants to buy also, he will not buy until 238.60 is not traded on higher side. He will get it lower price, much lower price. ठीक है ना? तो इस तरह से ये सब देखना चाहिए. 25 फरवरी से जितने भी हुए हैं, all 2018 से एक रिकॉर्ड तो है ही है. Now second is the beauty of this is आपको जो highest price and lowest price find out करना पड़ता था. Now it is ready-made available. Now आपको ये देखना चाहिए correction still till lower band. What is this? अदानी एंटरप्राइज एक ही रिकॉर्ड है. तो इसमें फिल्टर क्या क्या किया है? मल्टीपल लेडर्स ग्रेटर देन 2 है ना? Yes, sir. And complete around buy. And PCDS is lower band. अगर स्टॉपर उसको सेल इन आरसी होके FC 23.6 पे मिल रहा था, ये हम बाई कर ही रहे हैं, कुछ नया नहीं है. जाके देखना चाहिए कि अदानी एंटरप्राइज कौन सा डेट है? 12 मार्च. अब इसके लिए भी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इसका इनिशिएशन प्राइस दो, इसका स्क्वायर ऑफ प्राइस दो, इसका रीइनिशिएशन प्राइस दो. उसी से मैं घबरा रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में आ गए तो बाइंग का जजमेंट है, सेलिंग का जजमेंट है, ट्रेड करना है बस. एक्टिव शिक्षा जो हमको आती है उसको दिमाग में रख के एकदम फ्रेम करने जाएंगे तो नहीं होगा. कर लेंगे वो भी. 12 मार्च का व्हाट इज द लोएस्ट लो? 886, right? 886. Yes, sir. What is the highest? 923.80. So it is mentioned here. 886. देखो 933 है. How 933? So SNR2 sell का resistance. So Sovereign Social Relations. Yeah, I also missed. So ये सबका highest क्या है? 933. So this Yes, sir. suggests what? The prices will rise about 886 के 933. हाँ 933.85 हायर से ट्रेड करेगा तो मस्त नया बढ़ेगा. एंड हियर इन 12th मार्च लोअर बैंड स्टॉप लॉस रखा है. हियर वन मोर थिंग इज देयर. इफ लोअर बैंड इज ट्रेडेड स्ट्रेट, इट विल बी अवेलेबल एट FC 261.8. वहां बाइंग कर लो. बट कोई ये सोचे कि मैं 886 से 840 की सेलिंग की भी जर्नी ले लूं तो फिक्स नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 840 तक आएगा. और else whenever it trades with support again you buy. ये हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको. Okay, sir. तो
this what happened on the other day. It was trading with multiple ladder, right? Yes. It was Yes. trading with computer owned by, yes. And stop loss was selling RC and available at FC 23.6%. तो बाइंग कब करेंगे? इन करंट टाइम फ्रेम, कमिंग डेज फ्रेश सपोर्ट मिला तो बाइंग करेंगे, नहीं तो 886 के स्टॉप लॉस से भी बाइंग कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो। बट 886 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो बाय एट 840, बाय एट 831 फॉर द टारगेट ऑफ 933. And whenever 933. is on higher side, another 5%, 10%. तो यही हुआ। इट इसका 886 का टारगेट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो FC 261.8 मिल रहा था। Wow. और नेक्स्ट डे 933 ट्रेड कर लिया तो 1093, एंड अभी भी 933 से बाइंग आई है ना। Yes, sir. तो अब वो 933 गुड बाय ओनली। Sir, how did you Same come? way with Sorry, sir, how did you come to 261.8, sir? In terms of 12th how did you the occurrence period 1.8. 12th March it occurred, no? Yes, sir. तो 12th March 261.8 क्या है? 841 or 831, whatever it is. Idea is what? मुझे बाइंग ही करना है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो अच्छा है और नीचे मिलेगा माल 261.8 तक नीचे मिलेगा। बट हियर आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट, नो 886 लोअर से ट्रेड किया बेस तो 840 में तो मिलेगा। अगर वैसे ट्रेडर्स अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। So, so effectively what you're saying, trend is your friend. If it's a buying trend, then you should only be looking at buying at dips. बट ट्रेडर्स का क्या होता है मालूम है? ट्रेड इज माय फ्रेंड, नॉट ट्रेंड। उसको दिखता है ना 886 से 840 आएगा तो ये भी बेच देगा, छोड़ेगा नहीं इसको। Okay, sir. बाइंग ही करना मतलब बाइंग ही है। हर भाव में वो उसी दिन देखो ना 840 से 895 सेम डे। सीखेंगे हम, फिर हम एक और ट्रेड लेते हैं कि करेक्शन सेल टिल FC 100%, मतलब व्हाट इज द हियर मल्टीपल लेडर से चल रहा है, कंप्लीट राउंड से भी चल रहा है और FC 100% के पास 3 सवा 3 बजे मिलता है, लेके आ जाओ। समझ रहे हो? FC 100% स्टॉप लॉस। तो ये अदानी एंटरप्राइज 9th March, it was trading with multiple ladder, it was trading with complete around buy, and post closing drifting sell is what? FC 100%। और 886 के स्टॉप लॉस से ले लो। तो टारगेट वगैरह आई एक्सप्लेन। फर्स्ट टारगेट इज अपर बैंड, नेक्स्ट टारगेट इज RC 100%, नेक्स्ट टारगेट इज 261.8% ऑफ सेम प्लान। तो देखो 886 तक ही आया ये, नॉट ट्रेडेड, नो? Yes, sir. एंड फ्रॉम देयर इट इज कमिंग अप टू 923, मतलब अपर बैंड तक आया। अपर बैंड इज 926 हाफ, राइट? Yes, yes, sir. Absolute level is 923, right? Yes, sir. Buy with stop loss of 886 today। ये वो बोलते हैं ना, I don't like that language, buy today sell tomorrow, BTST। 886 के स्टॉप लॉस से लिया कभी 9 मार्च को, 12 मार्च को बेच दो 923 में। अपर बैंड तो आएगा कम से कम। FC 100% से अपर बैंड की जर्नी बहुत बढ़िया जर्नी होती है, इट्स ए गुड मूव। Yes, sir. और ये सब मैं आपको, हम लोग बैक टेस्टिंग के साथ करेंगे कि ऐसा ऐसा हमने अगर किया रहता तो हाउ इट हैज बिहेव्ड, और हिस्टोरिकल केस स्टडी के साथ लिखेंगे। नाउ दिस इज पुल बैक, 11 स्क्रिप्ट है, इसमें क्या किया है, व्हाट इज द रीजन टू सेल, मल्टीपल स्नैक, कंप्लीट आउट सेल, और वो बढ़ते 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 RC 100% तक आया। RC 100% इज नॉट ट्रेडेड, तो हाउ इट इज बिहेविंग। रिसेंटली इतने रिकॉर्ड्स है तो हमको थोड़ा सा पहले जाके देखना चाहिए। 18th March, 19th March रिसेंट है ना,
Yes, sir. बजाज ऑटो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस सर, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो दे शुड नॉट फील बैड, हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। बजाज ऑटो, एंड आई सॉ देयर इज नो क्वेरी फ्रॉम एनीवन। तो चलो, आज गुरुवार है, थर्सडे बहुत अच्छा दिन है, मंडे भी बहुत अच्छा दिन है, ट्यूसडे तो और ज्यादा अच्छा दिन है, वेडनेसडे इज सुपर डे, और फ्राइडे सैटरडे संडे तो और बहुत बढ़िया, वीकेंड से तो अच्छे दिन रहते ही हैं, ऑल डेज आर गुड ओनली। बजाज ऑटो 18th मार्च, तो सबसे पहले तो 18th मार्च का व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस? 3669, 3692, 3704, right? What is 370. the lowest price? 35, तो 3704 के स्टॉप लॉस से बेच दो। 36. Right. फर्स्ट जर्नी 3565, और 3565 ट्रेड किया तो और 5%। और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, देखो मैं बोलता हूँ इसके लिए नहीं, अब मैं बोलूंगा इसके लिए नहीं करना है, आपको बैक टेस्टिंग खुद करना है, और बैक टेस्टिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आएगा कि इन स्पाइट ऑफ लूजिंग ट्रेड्स यू विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन स्पाइट ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। सेलिंग के जजमेंट को पकड़ के रखना है। तो ये 3704 3565 यहाँ लिखा है, और क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल विद स्टॉप लॉस ऑफ 3704, फर्स्ट टारगेट 3565, 3565 ट्रेड किया तो और 5%। देखेंगे क्या हुआ आने वाले दिनों में। 3704 ट्रेड नहीं किया, और एक बार तो वहां आएगा, ये भी आपको हिस्टोरिकली चेक करना है, और कर पाओगे। एक बार तो 3704 आएगा, और वहां से स्टॉप एंड टू सेल भी हुआ, बेचो, फर्स्ट टारगेट 3565 आ गया, और 3565 भी ट्रेड किया तो और 5% हो गया, 10% खत्म। सब 10% के ट्रेड से ही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल 19th मार्च, और किसी को भी आज कल में अडोप्ट करने का आइडिया हो कि मैं कल जाके ट्रेडिंग कर लूंगा, तो वैसे एटीट्यूड वालों को सीखना ही नहीं चाहिए। 1 महीना 2 महीना देखना है, टेम्परामेंट डेवलप करना है, और सब शिक्षित को मालूम है, हाथों हाथ ट्रेड करने गए तो क्या हुआ, और प्रैक्टिस करके ट्रेड किया तो क्या हुआ। सो आई एम ट्रस्टिंग ऑल ऑफ माई शिक्षित कि कल सिखाया और परसों से ट्रेड नहीं लेंगे, टेम्परामेंट बनाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 19th मार्च, क्लियर दिख रहा है, 437.90 के स्टॉप लॉस से बेचो, 418.5 टारगेट, 418.5 ट्रेड किया तो और 5%। फिर देखते हैं ऐसा हुआ क्या। 19th मार्च, तो हाईएस्ट क्या था? 437.90, यस। Yeah. लोएस्ट 418.5, यस। तो ये इनफैक्ट आप लोगों को कंडीशन भी चेक करनी है, मल्टीपल स्नेक था क्या उस दिन, कंप्लीट अराउंड सेल था क्या उस दिन, क्योंकि एरर हो सकती है, नया नया है ना, मैंने तो देखा इट इज एररलेस, उसी के बाद अभी दिया है, बट स्टिल यू हैव टू चेक। मल्टीपल स्नेक है, हाँ है, कंप्लीट अराउंड सेल है, हाँ है। तो क्या हुआ 437.90 19th मार्च के बाद वो आया 22 तारीख को, तो 437.90 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया, 440.85 ट्रेड नहीं किया, 85 नहीं किया। तो अभी भी व्यू इंटैक्ट है। अच्छा, नाउ 437.90 is changed to 440.85। Yes, sir. 440.85 ट्रेड किया, 440.85 का नेक्स्ट लेवल RMSL high. हायर ओपन, तो नाउ 444.70 के स्टॉप लॉस से बेचना ही है। फर्स्ट टारगेट 418.5 आ गया, तो 418.5 ट्रेड करे तो और बेचो, 5% और। ऐसे रोमिल मानोगे तो एक बात बोलता हूँ, Yes, sir. कम से कम 20 से 25 सिनारियो हमारे पास ऐसे हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं और दे सकते हैं, and all are different scenarios and all are with not less than 5%. That's why no PCS PCR के पीछे पड़ा था 9 महीने से। It is exactly we are into 9th month to come to this level. That too with back testing. 20 plus trades है minimum, मैंने काउंट नहीं किया, but will release, जैसे अभी दो चार दिए, फिर धीरे धीरे will give more। उसमें से जो हमको जम जावे, मास्टरी करना है, मुझे भी नहीं मालूम है, जहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जहाँ पे इजी टू एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी एक ही रखेंगे, ओनली वन स्ट्रेटेजी।
Climbing by 261.8 stop loss to sell. How it has behaved? A pullback upper band. ये आरसी 100% तक आके टूटा, पुलबैक अपर बैंड था, तो कौन सी स्क्रिप्ट है ये? अभी रिसेंटली आज 25 तारीख को बोलो, आज इतनी सारी स्क्रिप्ट थी, सब बेच के आनी थी ये सब। अपर बैंड का स्टॉप लॉस 190 स्टॉप लॉस बेच के आओ। ये डबल डबल रिकॉर्ड आ रहे, देखो एरर है, मतलब लॉजिकल एरर नहीं है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एरर है। 25 मार्च के 2 एक्साइड बता रहा है, 25 मार्च के 2 फेडरल बैंक बता रहा है, ये छोटा छोटा रहेगा ना। हम देखते हैं पुराने में कैसा चलता है आपका बॉस। व्हाट इज द डेट? 19th मार्च। तो ये कह रहा है क्या? सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14,820, टारगेट 13,689 फर्स्ट टारगेट, एंड 13,689 ट्रेड किया तो और 5%, और 14,820 ट्रेड कर भी लिया अपर बैंड, तो आरसी 100% तक आएगा, तो बेचना ही है। एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो भी बेचना ही है, तो जितना ऊपर जाके टूटेगा ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। 19th मार्च, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस? 14,820, राइट? तो लिया है, बराबर है 14,820, ठीक है। व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस ऑन 19th मार्च? 13,689, 13,689 यहाँ दिया हुआ है, कहाँ गया? ये रहा। नाउ विल सी हाउ इट इज बिहेव। 14,820 के पास कैसे बिहेव किया 19th मार्च के बाद? 14,820, 14,820 ट्रेड किया ही नहीं, जैसे एक रेजिस्टेंस मिला बेच दो, नहीं तो 14,820 पे बेचो, एंड 13,825 ट्रेड कर लेगा, तो सॉरी 13,689 ट्रेड कर लेगा, कर लिया, नहीं किया तो कल कर लेगा, और वहां से 5% और देगा। आर यू देयर रोमिल? कहाँ गए? यस रोमिल। Yes, sir. I can hear you. Yes, sir. This is superb. सुपर तो अभी आना बाकी है भाई, Okay, sir. बहुत कुछ है। ठीक है ना, बट It's ये सब brilliant. बहुत Thank रेडीमेड you. करके किया है। बस एक ही बात है कि 1 महीना ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं रखे, एंड बैक ये सब बैक टेस्टिंग भी हमारे पास है फॉर ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स, डेली, वीकली एंड मंथली। बैक टेस्टिंग करने के रूमिल 2 फायदे हैं, एक कि एक्यूरेसी रेशियो है कि नहीं उनको पता चल जाएगा, और दूसरा हमारा टेम्परामेंट बन जाएगा कि कंसिस्टेंटली अगर मैं करता रहता हूँ तो नेट प्रॉफिट में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉस वाले ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, होंगे, इसमें भी होंगे। कंसिस्टेंटली करते हैं तो नफा होता है क्या? एंड ये सब कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे जो इन आरसी, इन एफसी, या ये बोथ इन एफसी, बोथ इन आरसी, ये सब पीसीआर कॉलम में दिया हुआ है, ये डबल स्टार है तो क्या 100% ही तो है। पीसीडीएस एफसी मल्टीपल स्नेक हो, पीसीडीएस एफसी 100% हो, 14,123 ट्रेड करता है 100% कमिंग डेज में, बेच दो। बस अभी एक ही बात बोलना है, बेच दो, ले लो, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, जिस हिसाब से मैं कहता हूँ, कह पाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कह पाता हूँ, उसी तरह से मेरी एक ही इच्छा है अभी कि भाई हर कोई इसी तरह से बोले, बस बेच दो, ले लो, हो गया, बेचना ही है, लेना ही है, उस तरह का कन्विक्शन आना चाहिए। ठीक है ना? नो इफ एंड बट, नॉट लाइकली टू बी सो, सीम्स टू बी सो, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, एक्सपर्ट्स, वो बोल सकते हैं इट इज लाइकली टू बी सो, इट सीम्स टू बी सो। हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो इंडिविजुअल्स है ना, कॉमन ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स है। हम ऐसा बोलने जाएंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। दे आर ट्रेडिंग अदर्स फंड्स, तो कुछ भी बोल सकते हैं। वी आर ट्रेडिंग अवर फंड, तो वी कैन नॉट से लाइकली टू बी सो, सीम्स टू बी सो। ऐसा होना है तो होना है, बेचना है तो बेचना है, लेना है तो लेना है। ठीक है ना? Yes, sir. Thank करेंगे you. फ्राइडे संडे हम। आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई वीकली टाइम से अपडेट हो जाए, तो इसमें से हम वीकली में चले गए, जिसको पेशेंस है
लाइक लायन, शेर भूखा रहेगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो उस तरह का जिसमें पेशेंस है ना, उनको धीरे से वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। 15% 20% की ट्रेड मिल जाए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एक्टिव शिक्षा मास्टरी करनी होगी उसके लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग आता हो तो बस है। एफ आर वगैरह सब ट्रेड किए हुए हो तो बस है। ठीक है। एनीवन एल्स कुछ क्वेरी, किसी को कुछ कहना है? एक सेकंड, बहुत सारे मैसेज है, किसी क्या कह रहे हैं। वाह, देखो रोमिल ने कहा ना दिस इज सुपर, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बट मोस्ट सीनियर पार्टिसिपेंट्स जो शिक्षा में है, उनका मैसेज आया कि भाई दिस इज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि सीनियर्स के लिए है ना, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द सरप्राइजेस नाउ। बाजार बढ़ता भी है तो उनको कुछ लगता नहीं है, टूटता भी है तो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सीनियर्स को मालूम है इससे क्या हो गया, ऐसा तो होना है। जब वो लिखते हैं कि सर दिस इज माइंड ब्लोइंग, तो देन इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखो फ्रेशर्स भी बुक कहते हैं पावर ग्रिड इज नॉट ट्रेडेड टू 61.8 इन रियल सेल्स, ओनली 20 पैसे इट इज ट्रेडेड। सो इट इज नॉट मैथमेटिक्स। सॉफ्टवेयर वो गिन लेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट हमको देखना पड़ेगा लिटरली वो ट्रेड किया है कि नहीं किया। हम ढंग से सीखेंगे तो सब देखेंगे। टेकन a trade in JSPL, which strategy? ठीक है, देखता हूँ JSPL। देखो वन मोर सीनियर, नो, वो जब करेक्शन सेल क्लाइंबिंग बाय 261.8 का कह रहा था ना, इसने 3 बार लिखा नो 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 सर डोंट टीच दिस, इट इज नॉन ट्रेंडिंग, मेनी विल गेट ट्रैप्ड, दैट टू मिजरेबली। हम्म, बहुत मस्त है। तो अभी कह दिया है, इतना हमने ले लिया है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई ये सब ट्रेड्स थोड़े देखो, किस तरह से बनाए गए हैं, क्या है, व्हाट इज द रीजन टू बाय, रीजन टू सेल, कैसे बिहेव किया। तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल while explaining during the dedicated webinars. Tomorrow it's evening और सैटरडे संडे विल हैव। ठीक है ना। बहुत मस्त है। FC 100% के पास मिल रहा हो। ये देखो एक पुल बैक टिल अपर बैंड 24 स्क्रिप्ट है। 24 में से रिसेंट कौन सी है? अब ये सब तो 15 मार्च वाली तो सब टूट गई होगी। अभी कौन सी हुई आजकल में? एक्साइड है, फेडरल है। देखना चाहिए कल जाके हाउ एक्साइड इज बिहेविंग, हाउ फेडरल इज बिहेविंग, हाउ हेवेल्स इज बिहेविंग, हाउ LIC हाउसिंग फाइनेंस इज बिहेविंग, हाउ MRF इज बिहेविंग। अशोक लेलैंड 19 मार्च का है। तो ये एक्चुअली देखने का वो पैशन रहना चाहिए। ट्रेड लेने का पैशन तो बाद में आना चाहिए। 19 मार्च अशोक लेलैंड अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेचा होता तो क्या होता? ये रिकॉर्ड शीट समझ में जाने से पहले इससे बात कर लेनी चाहिए। 100 120.85 के स्टॉप लॉस से बेचना है। फर्स्ट टारगेट 105.95, 105.95 ट्रेड किया तो 5% और, बस इतना बात कर लेना चाहिए इसके साथ। एंड फिर क्या हुआ 19 मार्च के बाद? मैंने ऐसा किया रहता तो क्या होता? 119.85 ट्रेड किया ही नहीं, 105.95 आ गया, हाँ आ गया। 105.95 ट्रेड किया तो 5% और मिनिमम। हाँ, ये तो देखते रहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। LIC हाउसिंग फाइनेंस 19 मार्च को इसने बोला था बेचो, स्टॉप लॉस 425.90। एक्चुअली ये अकरेंस पीरियड है, तो भी बेचो 425.90 से 392 ट्रेड किया तो मिनिमम 5% और, ऐसा बोल के बाद में 19 मार्च रिकॉर्ड सेक्शन में जाना चाहिए।
19th March 424.75, ये रहा 424, बेचो। 23rd March 425, बेचो। 392 तो आएगा, और 392 ट्रेड किया तो और 5%। ऐसा करके देखो, कल प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। सबके सब ट्रेड देख लेनी चाहिए। है कितने ट्रेड? 24 ही तो है। निफ्टी 19th मार्च 14,860 के स्टॉप लॉस से बेचो, 14,256 तो आएगा। क्या हुआ? निफ्टी 19th मार्च में जाओ, तुमसे व्यू तो मिल गया कि इस भाव के नीचे जब तक सेल ही है, बैंक तो करना ही नहीं है। 19th मार्च 14,860 ये आया। 22 मार्च को भी 14,860 आया, 23 मार्च को भी 14,860 आया। कहाँ ट्रेड किया? बेच दो स्टॉप लॉस से। टारगेट 14,254 आ गया आज, और 14,254 थोड़ा तो 5% नहीं है यार। कुछ लोग है ना, निफ्टी में भी 5%, बैंक निफ्टी में भी 5% ऐसे बोलते हैं। स्टॉक्स के लिए 5% है, निफ्टी में बस टूटेगा और टूटेगा। 5% यू कैन नॉट ऐड। 14,254 से उसको बाउंस बैक होना तो हुआ है, 14,254 ट्रेड करेगा, और करेगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आज थोड़ा उसने रिट्रेस करके आज टूटता ना तो मस्त हो जाता। विल कम टू निफ्टी, बट जब भी ये टूटेगा, कल परसों टूट जाए, कल ही टूट जाए, तो 14,250 को ट्रेड किया तो और बेचो। कहाँ आएगा? 13,596, 13,557 क्लियर दिख रहा है। 14,254 के नीचे 13,600, और ये मल्टीपल लेडर का जो लो है 13,596, तो 13,557 तो आएगा। बीच में कोई स्टेशन ही नहीं है, सुपर फास्ट ट्रेन है। तो बम्बई में होते हैं ना आपके, सीधा विरार से चली तो बोरीवली, चर्च गेट से चली तो सीधी बोरीवली, नो स्टेशन इन बिटवीन। हाँ, थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट आएंगे, थोड़े थोड़े पुल बैक आएंगे, बट बाइंग नहीं आएगी। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाइंग आएगी तो व्यू चेंज कर लेंगे। पहले 13,596 के पास ही है ना, 4 5 6 दिन पड़ा रहेगा वो। उसके बाद में वो ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम है। बस ये 14,254 ट्रेड कर ले। रियल ट्रेड तो तब है 14,860 से 254 का ट्रेड थोड़ी था। ट्रेड तो अब बनेगा 254 के नीचे। श्री कृष्ण सर, एनीवन एल्स से कुछ कहना है? ये सब कुछ नया नहीं है, बहुत टाइम से हम बोलते ही आए हैं। पीसीएस पीसीआर कॉलम में सब दिया हुआ है। डबल जितने भी ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करेंगे सब साइन यहाँ पे दी हुई है। क्या भाई, मैं बहुत मुश्किल से वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और आप कोई क्वेरी नहीं पूछ रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। अच्छा, क्या ट्रेड था उस पर? भूल गया मैं। क्या मैसेज था? उर्वशी का। JSPL, trading J, it has traded lower band and when to be stopping you to sell in day and then week। बाइंग किया था क्यों? मेरे को समझ में नहीं आ रही क्वेरी। बेचा हुआ है तो क्या करना है? फोन पे बात कर लो। वेबिनार में नहीं आ सकते हो तो कॉल मी नाउ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर कॉल मी नाउ। ओके, कॉल मी ताकि सबको समझ में आवे ना। इज इट पॉसिबल नाउ? हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण।
हम्म आईसीआरसी खुलकर एफसी 100% तक आता है तो वहां पे सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे नहीं करेंगे? तो वहां कर लेना चाहिए। और ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है एंड अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। तो जहां भी हम घबरा रहे हैं वहां पे एक्चुअली और सेलिंग करके आना चाहिए। नहीं किया हो तो और कल सेलिंग करनी है। 313.70 तक मतलब ऑलमोस्ट आरसी 61.8 तक बिक रहा था। मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट अराउंड सेल है, नहीं कंप्लीट अराउंड बाई है। ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल स्नेक है ना, ठीक है ना। अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। अपर बैंड ट्रेड भी कर लिया तो भी हाँ, क्योंकि व्हाट इज दिस, आप खाली इसका लॉजिक समझो। मल्टीपल स्नेक से चल रहा है मतलब इट इज इन सेलिंग, इट इज जस्ट रेस्पेक्टेड। एफसी 100% को उसने रेस्पेक्ट किया है एंड दिस स्टॉप एंड यूज टू बाय इज व्हाट, ट्रेंडिंग ट्रेड और नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड मतलब पुल बैक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है। और एक देखो रिसेंट लो भी 19 मार्च को 296.70 है। बाद में क्यों देखा? वो ट्रेड लेने के बाद में आपको थोड़ी बढ़ाना तोड़ना है, उसके बाद में रिपोर्ट शीट समरी एक बार देखो ना। और राइजिंग चैनल से टूटते टूटते एफसी, इसीलिए तो एफसी 100% के ऊपर ये ट्रेड बना है। तीन ही तो भाव है अपने पास, अपर बैंड 100% 261.8%, ये तीन लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्या? तीनों बहुत बड़ी हस्ती है मार्केट की, ठीक है ना। कोई बात नहीं, होल्ड करके रखो। अब कहाँ से बेचा हुआ है? हम्म, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके, नौ 315.25 जो पीसीसीबी है वो हायर से ट्रेड नहीं करे तब तक 294 तो आएगा। और 294 ट्रेड कर लिया है तो 5% तो 294 नहीं, 291.70 19 मार्च का सपोर्ट। इफ दैट ट्रेड तो लोअर साइड 5% तो और देगा, ठीक है। जिन्होंने एक्टिव शिक्षा अभी तक ढंग से अडोप्ट नहीं की है, यानी कि एक्टिव सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो उन्होंने केस स्टडी नहीं की, केस स्टडी नहीं किए हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग नहीं लिखा हुआ है, उसको मास्टरी नहीं किया, एफ आर के 10 ट्रेड नहीं किए हो, जो 5-7 स्ट्रेटेजी अपनी है एक्टिव शिक्षा की, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पीछे रह जाए। एक्चुअली मेरा तो आइडिया ये है कि जितने भी फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, जितने भी सीनियर्स है, 5 साल से हो या 10 साल से शिक्षा में हो, मैं उनको उनसे भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग अभी भी आईसीएफसी में पढ़े हो तो प्लीज आईसीएफसी से बाहर निकलो। एक्टिव आप खाली आईसीएफसी में पढ़े मत रहो, खाली एक बार फॉलोइंग से बाहर निकल जाओ। आरसी 38.2 ट्रेड करवाने का काम मेरा आपका। दिनेश बोलो। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I just wanted to share a small positive development. From this month, we are getting this nifty brief from you whenever it is required. और मेरा experience ये रहा है sir, purely based on this view of yours, I have been able to uh, book 50 lakhs profit in this month itself. And I thought it was important to share here because जो व्यू है और जब हम मार्केट को लाइव देख रहे हैं कि आपके ये इनपुट्स किस तरीके से रिस्पेक्ट होते हैं और ये किस तरीके से
even smallest of figure is being respected. For example, जैसे आज आपने एक छोटी सी चीज कही थी मैसेज में कि निफ्टी जो है ये तीनों फिगर के बीच में बाउंस करेगा, और उसी तरीके से उसने बाउंस भी किया। 1425 से लेके 1336 1362 था, फिर ऊपर से 14467 तक आपने बोला कि तीनों जगह बाउंस किया। एक्चुअली इट वेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब ये सर हम लाइव देख रहे हैं और जब ये एक्सपीरियंस हो रहा है, स्पेशली फॉर पर्सन लाइक मी हु केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, मेरा आपसे ये कहना है कि सर दिस इज एब्सोल्युटली phenomenal experience which I've had, and this 50 lakhs of profit that I have booked, this is not notional, this is what I have booked. If I book rest of the profit, then will definitely cross more than 85 lakhs in next few days. The point which I am trying to make is, sir, your way you go through about this analysis, if your good self can explain, although you have explained today once, but if you can take us through, because I am of the opinion this mindset is all that is required. That is my understanding this point of time, sir. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Very good, Dinesh. I'm very happy. एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं व्यू है ना कंसिस्टेंटली न दे पाऊंगा, न इस तरह से देता हूं, और आपको इस व्यू से ये सीखना है कि सर इस तरह का बाइंग सेलिंग के जजमेंट कैसे ले रहे हैं, so that you are not depending on my views, one thing, and you learn from this, have intense desire to achieve this level or even beyond this, better level than this, and this should be useful for you while applying to other trading strategies in other stocks. I'm desperate to give everything whatever I have, but इसका भी एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको लेना होगा। मेरे व्यू के ऊपर डिपेंड इसलिए नहीं रहना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल एरर मेरे में है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक एडवाइजर है वो एंट्री, एग्जिट और रीइनिशिएशन लगातार नहीं दे सकता है, कहीं ना कहीं तो वो चुकेगा, और अगर हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो जैसे ही वो चुका आप चुके। तो उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नो आल्सो कि कहाँ पे हम उसको स्क्वायर ऑफ कर ले। और दूसरी बात, अगर एडवाइजर कोई है और वो लगातार एंट्री, एग्जिट, रीइनिशिएशन शायद दे भी रहा है, तो जो रिसीवर है वो भी कहीं ना कहीं तो एंट्री, एग्जिट एंड रीइनिशिएशन कहीं ना कहीं तो चेन चुकेगा। जहां पे दो में से कोई एक भी अगर वो चेन चूक गया, देन नो, वो हार्मनी जो है वो टूट गई एक दिन, उसके बाद है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। और सब सीनियर्स को मालूम है कि मैं जब टर्निंग पॉइंट्स रहता है, टर्निंग पॉइंट्स वहीं पे मैं है ना बीच में आता हूँ। बाकी जब भैया ट्रेंडिंग बाइंग चलता रहता है या ट्रेंडिंग सेलिंग चलता रहता है तो मैं कहीं भी बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, खाली हम सिस्टम के हिसाब से उसकी बात कर लेते हैं। आई ऑलवेज कम ओनली व्हेन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए 15,200 से हम पीछे पड़े थे, और कभी ना कभी अब मुझे समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो रहा है, तो मे बी आई मे नॉट कंटिन्यू टू शेयर ऑल्सो। तो फिर आपको खुद को करना ही है, मालूम ही है सबको, सब कुछ मालूम है। एंड I really appreciate, I'm very happy, but learn the same way, achieve the same heights. मुंबई में ही 40 से 50 पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे दिनेश कि जो इसी शिक्षा सिस्टम में हिमांशु साह से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि सिस्टम को नहीं मालूम है कौन सा एक्सचेंज है, सिस्टम को नहीं मालूम है कौन सा स्टॉक्स है, सिस्टम को नहीं मालूम है कौन सी टाइम फ्रेम है। इस वजह से सिस्टम को नहीं मालूम है कि हिमांशु शाह है कि दिनेश है या कोई भी एक शिक्षा पार्टिसिपेंट है। इट वर्क्स फॉर ऑल, हूएवर टेक्स एफर्ट्स, इट वर्क्स फॉर ऑल। और एफर्ट्स तो कहाँ है, जमी जमाई हुई दुकानदारी है, चलानी है बस। हाँ दिनेश। Dinesh, are you there? Yes, sir. Yes, I was listening to you carefully, sir.
ठीक है ना? सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अंश बोलो, अंश। यस सर। सर गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। एक खाली समझ कंफर्म करनी थी सर, HDFC लाइफ डेली सर, इसमें अपन ने लास्ट वीक भी Setup. बात की थी सर। सेटअप recent low traded and complete turnaround is on the verge of happening, but घड़ी घड़ी SNR हो जाता है वो। मल्टीपल लेडर कर लो 672। हाँ ये हमने बात की थी, बराबर है 666। सर तो इसका ना कंप्लीट टर्नाराउंड क्या वो ऑन 17th मार्च टर्नाराउंड कंप्लीट टर्नाराउंड हो गया। आप बोल रहे हो घड़ी घड़ी स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाते, कहाँ हुआ यार? मुझे तो ये की दिख रहा है इतने टाइम से। नहीं सर, मतलब माय पॉइंट है कि यहाँ पे लास्ट 4-5-6 दिन से इट इज कमिंग नियर 690 का रेंज से आ रहा है, वापस वहां से वापस जा रहा है। फ्रॉम आप 19 मार्च से देख लोगे, 18 मार्च से 695 के आसपास आता है, बट इट इज नॉट एबल टू ट्रेड ऑन हायर साइड। सो मैंने ये समझ रखी थी कि इसको ऐसे कंटिन्यूसली हो रहा है एंड इट इज ऑलरेडी स्नेक से चल रहा है, तो उसको PCR ऑफ कंप्लीट टर्न अराउंड 17 मार्च उसको हाई साइड ट्रेड नहीं करना है। सो देन उसको PCDS ऑन वो 694 तक आके घूम जाता है घड़ी घड़ी। सो आई वाज जस्ट ट्रैकिंग के ऐसा समझ करेक्ट है कि इसको और कुछ फाइन ट्यून करना चाहिए। समझ में हमेशा दो चार वर्ड डाल दो, एक बाइंग में है कि सेलिंग में है, सर सेलिंग में है घर सर, में है कि बैर बेयर के के घर घर। में है। हाँ Any rising price is a retracement, it is a pullback, it is a distribution. तब तक जब तक 70760 हायर से ट्रेड नहीं करे, 69410 हायर से ट्रेड नहीं करे, जब तक एक लेडर नहीं आवे तब चलेगी है। हाँ सर, क्योंकि सर क्या हुआ देखो 24th को भी आई ट्रेडेड ऑन लोअर साइड एंड अगेन स्टॉप एंड टू बाय हो गया एक बार। कब हुआ? आज ही तो हुआ है। हाँ सर आज हुआ सर, एंड वो भी सर इट रिस्पेक्टेड FC14, इट कुड नॉट कम आउट ऑफ FC14, एकदम 14 PVA एक्सेस आके इट रिवर्स। जो हुआ स्टॉप एंड जो हुआ वो भी तो देखना चाहिए ना। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि मल्टीपल लेडर का वो है 672 666.65 when this trades on lower side new round of selling will begin, right? यस सर, तो 666.65 जो है वहीं तक आया, वही तक आगे सर घूम रहा है। यस सर, तो 666.65 का नेक्स्ट लेवल 663 है 100%, which is just traded and stop and use to buy has occurred. यस सर, The prices are rising or falling. फॉलिंग। When it will continue to fall further. When 615 and 95 trades on low side. Yes. When it will stop rising and stop declining and start rising. When sir the PCR of 17 March something in 690 था सर, एक बार ऊपर जाएंगे। आज नया occurrence हुआ ना। हाँ सर नया occurrence हुआ तो सर 676.20 on the higher side, PCCB on the higher side 686 और 686 और 686। यस सर 686 पकड़ेंगे। BDP हाई एंड PCCB का हाईएस्ट, करेक्ट सर 686। कल ICRC है, कटिंग फ्लाइंग काइट है, तो बढ़ सकता है, बढ़े तो बेच नहीं है BDP के पास, रिवर्स में तो भी बेच नहीं है। फर्स्ट टारगेट 615 है, 655 ट्रेड किया तो 5%, उसका तो बेचते रहना, क्योंकि मल्टीपल लेटर का लो तोड़ दिया, अगर तोड़ देता है आगे जाके देन इट विल कंटिन्यू टू फॉल
कंटिन्यूसली। गॉट इट सर, ठीक है सर, यही खाली पूछना था। थैंक यू सर। Anyone else? बोलो कमलेश भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ. સર તમને એવું નથી લાગતું કે તમે થોડું કામ વધારે લેવા માંડ્યા? લાઈક અમારા જેવા સમજાવું સર, લાઈક અમારા જેવા સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ સાથે તમે કહેતા જ છો, બધા સિનિયર કે જુનિયર, કોઈ સિનિયર જુનિયર છે જ નહીં. પણ હવે ધારો કે હું એવું તમને કહું કે સર મારે તો અમેરિકા સેટ થવું છે, તો ગયા જાઓ. ડાઉ જોન્સ ના ડેટા સર માગીશ ને હું તમારી પાસે. હા છે ને, મળી જશે. એટલે આ બધું તમે કરો છો તો એટલું બધું સ્પીચલેસ છે કે હવે એવું થાય છે કે ઇન્ડિયામાં શું રૂપિયા બનાવે છે, ડાઉ જોન્સ પણ એમાં ડોલરમાં જ બનાવીએ ને. एक्चुअली जो लोग यूएस डाउ जोन्स वगैरह में काम कर रहे हैं ना, अपनी शिक्षा सिस्टम वर्ल्ड वर्जन रख के, उनका कहना ये है कि दिस इज मोर इफेक्टिव इन फॉरेन मार्केट्स देन इंडियन मार्केट। मुझे तो भाव ही नहीं मालूम रहता है, देखा भी नहीं है, बट इट वर्क्स वेरी वेल एवरीवेयर। सिस्टम को काम मालूम है। સર ડોન્ટ ટેક ઇટ અધર વે, કોઈ ખરાબ મતલબ ન નીકળતા, પણ તમે ઘણી વખત એઝ એ ફ્રેન્ડ, એઝ એ ગુરુદેવ, એઝ એ ટીચર, એઝ એ મેન્ટર તમે એવું કર્યું છે કે મારા સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ બધાની ઓલામાંથી હું શીખું છું, સિનિયર પાર્ટિસિપન્ટ્સ તો બહુ થેન્કફુલનેસ છું, થેન્કફુલ છે ને. તો અમારે લોકોને હવે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ધારો કે લાઈક મી, આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ 50 યર, રાઈટ? તો મારે તો હવે જે તમારું આપણું શિક્ષાનું નોલેજ તમે મને જેટલી તમારી કૃપાથી, તમારા આશીર્વાદથી, તમારા ઓલા ટીચિંગ સ્ટાઇલથી જે શીખ્યા છે, અને હવે જે આ લોકો શીખે છે નવા ફ્રેશર્સ, એમાં અમારામાં ડેફિનેટલી ફરક છે. પણ ધારો કે મારી એજ થઈ ગઈ છે ને મારે હજી શિક્ષા સિસ્ટમ ઉપર કમાન્ડ પૂરેપૂરો છે, તો હવે ઇન્ડિયન માર્કેટ મને સેટિસ્ફાઈડ કરી શકે એમ નથી. તો 60 ટાઈમ્સ, 70 ટાઈમ્સ, 80 ટાઈમ્સ ફાસ્ટ મની મારે કમાવા હોય તો મારે અમેરિકા જ જવું પડે ને સર. તો તમારી જવાબદારી વધી ગઈ ને સર, એમ કેવા હું એ માંગુ છું. ભલે કેટલું સુપર્બ કરી આપ્યું તમે એમ, અને કેટલું ઈઝી થઈ ગયું. મારી જરૂર હવે પડશે જ નહીં ને એ ટાઈપનું નેક્સ્ટ 6 મંથ્સમાં સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવું છે. નેક્સ્ટ લેવલ ઇઝ ધેટ કે મારી જરૂર ન પડવી જોઈએ. હવે મારી જરૂર પડવી જોઈએ ટુ ટેક યુ ઓલ ટુ નેક્સ્ટ લેવલ. એ ડિફરન્ટ થિંગ છે સર. ठीक है, स्पीचलेस की बात कर लें। जी सर, जी प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ आना बाकी है अभी। अब बहुत फटाफट आएगा सभी। ये लोग है ना, कुछ तो काम भी नहीं हुआ कोरोना पीरियड में, वर्क फ्रॉम होम करके अपने को टेक्निकल कुछ समझ में नहीं आता है, कोडिंग कैसे होता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं हो मंथली बात करें तो हमने आज कहा कि री एंट्री इनटू आरसी है, तो और डायरेक्टर पैटर्न ये देखो, मल्टीपल लेडर्स भी है, डायरेक्टर पैटर्न रेंज इन डायरेक्टर पैटर्न भी ग्रीन है, और री एंट्री इनटू आरसी हो के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 478 पे माल मिल रहा है। तो यहाँ पे 264 14.6 पे मिल रहा था, तो 199 के स्टॉप लॉस से ये बाइंग है। एंड यूजुअली री एंट्री इनटू आरसी का जो प्रोजेक्टेड टारगेट होता है वो आरसी 38.2 होता है, बट फिर भी ये री एंट्री इनटू आरसी विल नॉट बी इफेक्टिव। द रीजन इज लोअर टाइम फ्रेम वीकली जो है इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा है। इसके लिए इसको अपना टारगेट जो लाने में 15,095 का जो टारगेट लाना है, आना चाहिए, वो आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस। इसलिए बाइंग नहीं कर सकते हैं और सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
मंथली में री एंट्री इनटू आरसी के बराबर सपोर्ट के पास वहां पे वो आ गया है, तो हम सेलिंग के लिए भी कैसे बात करें। तो मंथली से हमको बाइंग का व्यू नहीं मिल रहा है, दो बाइंग में है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, और सेलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एकदम सपोर्ट तक आ गया है, राइट। ये 14199 सपोर्ट है। वीकली क्या होता है देखते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाइंग सेलिंग जजमेंट। वीकली ये आईसीएफसी खुल के री एंट्री टू एफसी होकर एफसी 38.2 तक आ गया और लोअर बैंड फोर्थ रिकॉर्ड पॉइंट है, तो उसने बिना रिट्रेस किए लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, तो कैसे एफसी 61.8 197 लोअर से ट्रेड कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एटीआर जर्नी भी कंप्लीट हो गई थी, एटीआर जर्नी कंप्लीट होकर उसको एक बार तो रिट्रेस करना है ना। आज ये रिट्रेस हुआ भी, बट काश वो 525 तक हो जाता, 526 तक हो जाता, लेकिन 264 से ऑलमोस्ट, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, कहाँ मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, कहाँ पे हम रूल्स तोड़ रहे हैं। लेकिन रूल्स वही तोड़ सकते हैं जो रूल्स को बहुत अच्छे से हर बार डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हो। तो यहाँ पे 526 तक का मिनिमम रिट्रेसमेंट जो होना था वो नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा कि 467 या 476, आई डू नॉट रिमेम्बर, वहां तक तो मैंने देखा भी नहीं एक्चुअली, वहां तक कहीं कुछ रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिबर्टी ले सकते हैं कि रिट्रेस हो गया, रिट्रेस हो गया। अब रिट्रेस होने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में से हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये 526 आके लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता तो एटीआर जर्नी कंप्लीट क्या एक्सटेंड ही कर लेता, क्योंकि 366 का नेक्स्ट लेवल है 14197, तो यहाँ पे जर्नी एक्सटेंड करके मिनिमम एफसी 100% भी आ जाता और एफसी 100% भी ट्रेड कर लेता इस वीक में। बट ये पूरा रिट्रेस नहीं हुआ है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए भी मैं ये मानने को तैयार हूँ कि रिट्रेस हो चुका है। नाउ हम कल डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे 14467, वो ये लेवल है 26 फरवरी का। तो 14467 हमने कहा था कि 467 से 350, 350 से 254, और 254 से 467 को उसने रिस्पेक्ट दे दिया, और 350 के पास भी वक्त रह लिया उसने, उसको भी रिस्पेक्ट दे दिया। एंड हालांकि 350 लोड से ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है, तो मंथली को एक बार इग्नोर करते हुए वीकली में रिट्रेस हो गया, सिर्फ कल के लिए, ये कल के लिए वैलिड है बात जो कर रहे हैं। तो ये लिबर्टी हम सिर्फ कल के लिए ले रहे हैं, प्रोजेक्टिंग दैट वीकली हैज रिट्रेस्ड, कंसीडरिंग दैट वीकली हैज रिट्रेस्ड। और कल डेली टाइम फ्रेम में आईसीआरसी खुलकर एक बार अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए, और 525 वगैरह सब आएगा कि नहीं, एक्चुअली एक्सपेंडेड रेंज होगी ना, एक्सपेंडेड है। तो जो भी हाई होगा ना, कल में कुछ बफर वैल्यू आप लोगों को मालूम है, वो जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मालूम रहे वही अच्छा है। जो भी हाई होगा उसके ऊपर मैं बफर वैल्यू देता हूँ। इसका 0.073% 11 पॉइंट, तो कितना होगा 11 और 23।
34 पॉइंट्स जो भी हाई है, क्योंकि अपर बैंड का स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो जाएगा, तो ICRC खुल जाए तो थोड़ा समझ के जैसे नीचे आता है तो हाई प्लस 34 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के बेचना चाहिए। कल RC 38.2 से HC 38.2 के बीच में रहेगा ऐसा लग रहा है। RC 23.6 से HC 38.2 के बीच में रहेगा, 387 से 223 177। बट इस तरह से ICRC खुलकर अगर एक्टिव रेजिस्टेंस मिल के लोअर बैंड ट्रेड करके फिर रिट्रेस होके टूटता है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि मुझे 350 जो है इसका टूट ही गया, टूट के स्टॉप एंड गिफ्ट बाई टेम्परेरी हुआ है 254 को रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड 1400 एंड 1470 वहां तक आएगा 100% तक। ICRC खुल गया तो एक बार मैं देखूंगा, मैं मैसेज भेजूंगा उस समय, अगर वो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो होगा वो ट्रिगर हो जाए तो प्लीज इनडिसिप्लिन वे का ट्रेड होगा, सेलिंग जजमेंट को पकड़ के बेचने का है, वो वाला ट्रेड होगा, एंड वी कैन प्रोजेक्ट 100% FC फ्रॉम RC। ठीक है ना, यही है, कल रिव्यू करेंगे, कल होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 14 कल एक दिन और रिस्पेक्ट कर लेगा, 14,467 350 254 के आसपास रहेंगे, अल्टीमेटली उसको टूटना है और टूट के 13,600 आना है, तो आएगा, आएगा इजीली आ जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं चलेगा वेबिनार 13,600 से वापस आएगा 14,350 तक, तो 14,467 तक, 13,600 से फटाफट 2-3 दिन में आ जाएगा 467 350। फिर वहां से क्या करता है देखना पड़ेगा, वहां से अगर घुमा तो फिर एक बहुत नीचे नीचे की जर्नी बनेगी। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग एट 13,600। फिर आगे की बात करेंगे उस समय, अभी तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेट अस बी व्हाट इज हैपनिंग नाउ, बेचते रहेंगे। ठीक है ना, जल्दी से भी कुछ भी निफ्टी में बाइंग में अटक मत जाना, 2 महीने की मेहनत है अपनी लगातार, जो हमने माहौल बना के रखा हुआ है बने रहने दो, लव टू मिस अपॉर्चुनिटीज, एनी राइजिंग प्राइस मिस करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल।